Why people consider parenting as a job when everybody does it? So शिवम, इसका ना एक पहलू ये है कि इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेज अलोन, इट्स नॉट अबाउट कि ये सब कुछ मिलने के बाद ठीक हो जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि पेरेंटिंग है क्या। कि मैं ऑफिस में भी ऐसी ही केस स्टडीज पे काम कर रहा हूँ, ऐसे ही पैटर्न्स पे काम कर रहा हूँ, और जब मैं घर आता हूँ तो मुझे फिर उतना ही दिमाग लगाना है टू वर्क और टू इवन प्ले विथ माई किड। इज देयर अ हैक मैं इसको कहीं से मिटिगेट कर दूँ? अगर शिवम ये सारे पैटर्न्स समझ में आ जाए और तरीके पता चल जाए तो कैसा रहेगा? सो यू आर सेइंग कि आपने सारे हैक्स, मतलब आपने सारे पैटर्न्स पकड़ लिए हैं, एंड हाउ टू डील विद देम, यू हैव थिंग्स व्हिच कैन डील विद देम। Absolutely. We have understood what are these patterns and what are the hacks to go about with these patterns, and all of that is documented with us. These are solvable and you guys can do it. Absolutely. Anybody can do it. As a parent, how I can ensure that my child should not get into bad company or should not be exposed to any bad kind of substance? वेप करो, सुट्टा मारो, हुक्का मारो, दारू लो, तो ऐसी ही पार्टी होती है। तो एक्सपोजर तो नहीं रुक सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो बहुत सिंपल सी चीज़ हर पेरेंट को बोलता हूँ यार, हर पेरेंट को डर लगता है कि मेरा बच्चा ना संगत से बिगड़ जाएगा। इसको रिवर्स करते हैं ना, मेरा बच्चा उस संगत को अपने वजह से ठीक कर लेगा। Can you guys help them find the solution for the problem of a and is it possible? Absolutely, they can meet us. Yes, it is possible. So hello guys, welcome to our new podcast. Today we have Team Parvarish with us, and these guys are very well known in the parenting coaching space. I would like to have your brief introductions, starting with you, Sushant sir. यार, what do I say? I'm a father of a 25-year-old and a 20-year-old, and at one point of time I never wanted to be a parent, and the reason was when I saw people, parenting appeared like a almost impossible thankless job. कि इसमें तो लड़ाइयाँ ही होंगी, दुखी मिलेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, and at the end of the day you'll be told by your children कि यार you could have done it better. तो मैंने कहा यार क्या ज़रूरत है? It started from there, but it's been 18 years of coaching parents, and a very quick thing about Parvarish would be that it's not my opinion. It's not opinionated parenting. Me, Manvi, and a few other people who've actually studied human development, child development, we've got it together and we've got the whole system in place for parents to use it. Right. And Manvi, can I have your brief introduction? So, in brief, I can talk about my education qualification. I am a master's in developmental psychology from Delhi University, and then I did advanced diploma course in child guidance and counseling. So, I'm a RCI certified rehabilitation professional. It's been 13 and a half years. I am working as a child counselor, parent coach, and psychotherapist. My journey starts way back from when in my school years when I first encountered my phase of depression and anxiety. Because I've seen depression and anxiety so closely in my life, gradually it got unfolded and became the purpose of my life to support people who are going through these hidden situations. ना वो समझ पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, ना आसपास का environment acknowledge कर पाता है, समझ पाता है. So gradually that became my purpose, and when I entered parent coaching, I really want to support parents to understand their children better and understand what do they want apart from the basic resources we provide. Right, right. सुशांत सर, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ किया कि पेरेंटिंग इज़ नॉट अ जॉब और इज़ अ जॉब. Why people consider parenting as a job when everybody does it? यार हर पेरेंट ना अपने बच्चे को सबसे बेहतर देना चाहता है, राइट? और कोई तरीके समझ में नहीं आता कि बेस्ट क्या होता है, राइट? तो वो उसको करना है और नहीं दे पा रहा है. आफ्टर अ वाइल, तो जब बच्चे पैदा हुए ना तब वो जॉब नहीं लगता है. आफ्टर अ वाइल लगता है कि यार इन चीज़ में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और जो मैं कर रहा हूँ वो शायद ठीक नहीं हो रहा है. एंड द अदर थिंग विच गोज इन दी सोसाइटी इज दैट अब बच्चा तो माँ बाप दोनों का ही है ना, बट द वे इट्स बीन कंस्ट्रक्टेड, द फादर हैज़ एन एवेन्यू कि यार मेरे को ना बिजनेस करना है, मुझे पैसे लाने हैं, मुझे रिसोर्सेज लाने हैं, तो ये मेरा काम है, एंड मम्मी तुम ये वाला काम करो.
तो काम से शुरू नहीं होता है, लेकिन बहुत जल्दी काम बदल जाता है, राइट काम में बदल जाता है। राइट राइट राइट। और आज की जो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है इस पूरी पॉडकास्ट का, वो भी हमने वैसे ही रखा है कि मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जो लगता नहीं है कि ये क्वेश्चंस एग्जिस्ट भी क्यों करते हैं, बट क्योंकि ये सिचुएशंस हमने आसपास देखी हैं। हम एज अ बिजनेस कंसल्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फर्म, हम काफ़ी बिजनेस फैमिलीज़ के साथ काम करते हैं और उनकी कुछ क्वेश्चंस हैं पेरेंटिंग से रिगार्डिंग, और मैं आपसे बस वही सवाल करना चाहता हूँ और उस पर क्लैरिटी लेना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इस एज एन एक्सपर्ट, एज अ पीपल हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है कि इट एंड ये सारी बिजनेस फैमिलीज़ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे सबने फेस किया होता है कि जब हम इन्हें बेस्ट स्कूल दे रहे हैं, जब हम इन्हें बेस्ट एक्सपोजर दे रहे हैं, जब हम इन्हें बेस्ट कंफर्ट दे रहे हैं, देन इसके अलावा क्या बचता है टू लीड द लाइफ विद एग्जाम्पल, और टू लीड अ वेरी हेल्दी कंफर्टेबल एंड वेरी यू कैन से मेंटली कंफर्टेबल लाइफ। वाई मतलब ऐसा क्यों होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता एंड पीपल स्टार्ट फेसिंग challenges with their child? सो शिवम, इसका ना एक 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 पहलू ये है कि इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेज अलोन, इट्स नॉट अबाउट कि ये सब कुछ मिलने के बाद ठीक हो जाना चाहिए। क्या ऐसे घर जहाँ पे ये नहीं अवेलेबल, क्या वहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें हो रही हैं कि अच्छे बच्चे भी निकल रहे हैं और दूसरी लाइन पे भी जा रहे हैं? रिसोर्सेज भी नहीं है, अच्छे स्कूल्स भी नहीं थे, पैसा भी कम है, और दूसरी तरफ देर आर फैमिलीज वेयर all of it is in abundance, and yet you will see both sides of it. So it's not specific to money or resources or abundance there. Why it is not happening is because अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि 99.99% people, और मैं 0.01 इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है एक्सेप्शंस हो, डोंट इवन नो कि पेरेंटिंग है क्या। It may be shocking to listen to this, but in the last 17-18 years, we have met more than 300,000 parents. एक भी जवाब नहीं दे पाया कि तुम्हारा रोल क्या है। सो अगर मुझे रोल ही नहीं पता तो डिफ़िकल्टी तो आएगी ना। अब मेरे को अपनी गाड़ी ठीक करनी है, लेकिन मुझे गाड़ी ठीक करनी नहीं आती, और मैं गाड़ी का बोनट खोल के बैठ जाऊँ, तो मैं तो 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे लगा दूँ और बोलूँगा यार गाड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट वहीं उसका मैकेनिक आके 5 मिनट में ठीक करके चला जाएगा, बिकॉज ही नो एग्जैक्टली क्या करना है। सो इफ़ यू नो एग्जैक्टली क्या करना है ना, दैट इज़ द पॉइंट। Right. And this is the question to you. If I want to understand कि जैसा सर ने बोला कि पेरेंटिंग क्या है यही पता नहीं होता, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि पेरेंटिंग है क्या? या वेरी वेरी गुड कैच कि एक्चुअली पेरेंटिंग है क्या। क्योंकि जैसे सुशांत ने बोला ना कि वो पेरेंट नहीं बनना चाहते थे, पेरेंट्स को पता नहीं है, पेरेंट्स सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। तो ये रियली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पेरेंट्स ना कभी इस पर सोच भी नहीं पाते हैं कि पेरेंटिंग है क्या। बच्चा हुआ, सबसे पहले क्या काम करना है, उसकी सुसु पॉटी साफ़ करनी है, डाइपर चेंज करना है, वो फीड कर ले, वो सर्वाइव कर जाए। फर्स्ट 1.5 ईयर्स इज़ बेसिकली कि वो सर्वाइव कर जाए। उसके बाद इसके लिए मैं बेटर क्या कर सकता हूँ, अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट रिसोर्स लगा दूंगा, माई बेस्ट ऑफ बेस्ट चॉइसेस फॉर माई चाइल्ड। एंड बस हम ना आगे बढ़ने के चक्कर में, उसको ग्रो करने के प्रोसेस में बिजी हो जाते हैं, बड़ी पिक्चर देखना मिस कर देते हैं कि पेरेंटिंग एक्चुअली क्या है। पेरेंटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड। बच्चा तो अपने आप बड़ा हो ही जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करोगे, फिजिकली दे विल ग्रो, सोशली, मेंटली, इमोशनली दे विल ग्रो, डेवलपमेंट तो होगी। बट हमारा काम क्या है कि हम उनकी इस जर्नी को कैसे एनरिचिंग बना सकें, और जो जो बेसिक लाइफ स्किल्स की ज़रूरत है, लाइक वी से इन आवर पेरेंटिंग प्रोग्राम टू पेरेंट्स, थिंक अबाउट क्या हमें पता है कि हम कब तक हैं उनकी लाइफ में, हम कब तक अपनी बेस्ट ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल हेल्थ तक है, तो हमारा आज काम क्या है। सो पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर द लाइफ, नो मैटर व्हाट सिचुएशन कम्स इन, fortunate or unfortunate, they are ready to face the life. So I feel that is parenting. Right. Now, you have beautifully summed it up. Now, this is a personal question from my side that I come from a very modest family, and I am working and I have worked my way up. और मेरे पेरेंट्स को ये बहुत शायद पहले समझ में आ गया था कि ये इंडिपेंडेंट हो गया है, ये कर लेगा खुद से,
राइट. बट कुछ इलीट फैमिलीज में या कुछ ऐसी बिजनेस फैमिलीज में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे हैव एवरीथिंग, दे हैव एवरी रिसोर्सेज, एवरी कनेक्ट टू गिव टू देयर चाइल्ड, उनको अभी भी ये कन्फ्यूजन या डाउट रहता है कि क्या मैं एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को रेस कर रहे हैं, या ये प्रिविलेज पे ही, जो प्रिविलेज जो इनको मिला है, ये उसी पे सर्वाइव करेंगे. इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्या ऐसा पैटर्न आप लोगों ने देखा है कि अगर मॉडेस्ट फैमिली से आ रहे हैं तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट, या ज़्यादा चांसेस है उनके इंडिपेंडेंट होने में, या अगर उनका बैकग्राउंड बहुत अफ्लुएंट है तो देयर इज़ अ गुड चांस कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे एंड दे विल बी वेरी डिपेंडेंट ऑन देयर प्रिविलेज? ऐसा ना कुछ नहीं है. मतलब आई हैव सीन अमटीन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ फैमिलीज ऑन दिस पैटर्न कि पेरेंट्स जहाँ पर दे आर रियली ऑन अ हैंड टू माउथ सिचुएशन एंड स्टिल दे सी चिल्ड्रन showing up the behaviors of feeling privileged. जहाँ पेरेंट्स को अपनी बेसिक नीड्स मीट करने में दिक्कत हो रही है, वहाँ दे सी चिल्ड्रन lying, manipulating, even stealing money, or sometimes taking the usage of resources as granted. ये बहुत होता है. और ऐसा भी हमने देखा है जहाँ families who are affluent but still children are very grounded and they have the mindful and a thoughtful usage of resources as a mindset. तो इसका ऐसा कोई लिंक नहीं है. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कैसे पता चलेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई कि हम बच्चों को रिसोर्सेज दे रहे हैं, बच्चे प्रिविलेज्ड समझ रहे हैं या उसका यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंडेड हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई होता है? इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, योर क्वेश्चन वाज इंडिपेंडेंट हो रहे हैं या प्रिविलेज समझ रहे हैं. आई थिंक पेरेंट्स को ना इसकी साइंस और इंडिकेशंस मिल जाती हैं बट हमसे इग्नोर हो जाती हैं. सो जैसे कि डे टू डे लाइफ में ना हमें दिखता है कि बच्चे अपने काम की जिम्मेदारी ले रहा है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाना है, स्कूल बैग, माई स्टेशनरी, माई होमवर्क, माई क्लास वर्क. इज ही टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट? इज ही शोइंग अप द साइंस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, और इज थिंकिंग ठीक है ना यार, हो जाएगा मम्मी, नहीं किया होमवर्क तो क्या हो गया, टीचर ने डांट दिया तो क्या हो गया, एक पेन खो गया तो ठीक है ना, मिल जाएगा दोबारा, हो जाएगा, ठीक है. सो वेन यू रियली सी योर चाइल्ड कमिंग फ्रॉम दैट एटीट्यूड ऑफ ठीक है, चलता है, नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, तो समझ में आ जाता है कि दे आर नॉट रेडी और दे आर नॉट able to have that vision that this is my life, I need to take charge of it, और मुझे इसका ध्यान रखना है, rather than feeling like पीछे laid back बैठे हैं, हो जाएगा, सब मिल जाएगा, सब कर ही तो लेंगे. राइट. उन चीज़ों से पता चल जाता है. You एक have चीज़ a- ऐड करना Yeah. चाहूँगा यार. आई वांट टू एक्चुअली ब्रेक अ मिथ. एक ना भ्रम में जीते हैं हम लोग कि ये बच्चा है ना ऐसा निकल गया. अभी जैसे मानवी बता रही थी ना आपको कि ये अंडर प्रिविलेज्ड लोगों में भी दोनों चीज़ें दिखेंगी और हाईली प्रिविलेज में भी दिखेंगी. तो हम ये कहते हैं यार बच्चा ऐसा निकल गया. यार बच्चा ऐसा निकल गया नहीं होता है. आप हर बच्चे को वो डायरेक्शन दे सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर रिसोर्सेज, वो कहीं से भी आया हो. तो ये समझना कि वो जैसा भी है वो इस डायरेक्शन में जाए और इस डायरेक्शन में ना जाए, ये 100% अ पेरेंट कैन मेक श्योर विदाउट सेइंग आजकल के बच्चे या चल यार ये लकी था, इसका बच्चा अच्छा निकल गया, ये बेचारा अनलकी है, इसका बच्चा बेकार निकला. ऐसा कुछ नहीं है. यही मेरा फॉलोअप क्वेश्चन भी था कि इफ़, मतलब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो बहुत सारे हमसे भी इंटरेक्ट करते हैं कि उनकी कंप्लेंट होती है कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत इनडिसिप्लिन्ड है, राइट. तो ये इनडिसिप्लिन्ड रियली इट इज़ अ मैटर ऑफ अ डिसिप्लिन और समथिंग रियली अदर देन दिस गोइंग ऑन इमोशनली? क्या होता है इस चीज़? या सो डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन तो ना कवर है. ऐसे समझो जैसे कि एक डब्बा है और उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा गिफ्ट पेपर लगा दिया है, और वी कैन से द टिप ऑफ द आइसबर्ग. बच्चा डिसिप्लिन रूटीन फॉलो कर रहा है या इनडिसिप्लिन रूटीन फॉलो कर रहा है इज जस्ट अ सिम्टम like a fever or a cold and cough. But why is it happening to the child? That is the real story. अगर डिसिप्लिन भी बच्चा फॉलो कर रहा है क्यों कर रहा है, और अगर इनडिसिप्लिन है तो क्यों कर रहा है, द रियल स्टोरी इज बिहाइंड. एंड एब्सोल्युटली उसके पीछे एक इमोशनल एंगल होता है, मेंटल एंगल होता है, सोशल एंगल होता है. बच्चा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को कैसे प्रोसेस कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है, उस पर बहुत मैटर करता है. एंड समटाइम्स वी ऑल्सो टेल आवर पेरेंट्स, यू नो, दैट इफ यू विल रन आफ्टर डिसिप्लिन और मेकिंग चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज, you will actually distance the child from you. Discipline, enforcing, like pushing children to have a disciplined routine can actually lead to a distance with the child. The relationship will be distant and the child will always fear the authority or have this tendency to take a revenge or rebel authority. Right? That's what Yeah. we have always seen. और एक क्वेश्चन आपसे पूछूं,
जब आपने वर्ड यूज़ किया डिसिप्लिन, क्या दिमाग में डिसिप्लिन था या ओबीडियंस थी? Now there is, व्हाट इज द वर्ड? I think, obedience, Compliance. right? Compliance. Yeah. So one of the biggest problem is that we've collapsed discipline with obedience. मेरा बच्चा मेरी बात मान ले तो वो डिसिप्लिन हो गया. वो डिसिप्लिन नहीं है, वो ओबीडियंस है. एंड ओबीडियंस विल लीड टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन. अगर वो ओबीडियंट हो गया ना, वो डिपेंडेंट है. वो ना अपने बारे में सोच पा रहा है, ना अपना कुछ काम कर पा रहा है. कल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा. They lose the ability to make choices on their own because somebody else is enforcing the choices and मम्मी, आप decisions on बताओ. them. Yeah, मुझे आप नहीं बताओ. पता. सो डिसिप्लिन का ना सिर्फ एक ही तरीका होता है. दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन, एंड दैट इज टॉट. It doesn't come through obedience. It's impossible. It's actually contrasting. Obedience destroys discipline. Right. Now, as opposite to that, कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो obedient होते हैं और हम उनको disciplined मान लेते हैं. कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए हर बार अपने पेरेंट्स से negotiate करते हैं. And we have seen this a lot of time, and we have got the complaints and people have raised this issue. ये क्यों होता है? Why जो the kid basically negotiate for everything with their parents, and how to solve this and how to identify this? Parents are confused कि मैं कब कितना दूं. Should I say yes now or should I say no now? Should I go ahead with it or should I stop? अब उस चक्कर में होता क्या है कि आपने कुछ मांगा एज अ चाइल्ड, तो मेरा मूड ठीक नहीं था. मेरे को लगा नहीं यार अभी नहीं दूंगा, तो मैंने मना कर दिया. किसी और टाइम वही चीज़ मांगी और मैंने एकदम दे दी. तो व्हाट हैपेंस टू अ चाइल्ड? वो कंफ्यूज हो गया ना कि यार समझ में नहीं आया. एक बार मम्मी ने हाँ दे दिया, एक बार पापा ने मत दे दिया, एक बार मना कर दिया. तो अगली बार जब मैं गया मांगने तो मना हो गया. सो अब मैं क्या करूँगा कि मिला तो है पहले, अब मम्मी ने मना किया, पापा ने मना किया, तब शुरू हो जाएगी हमारी नेगोशिएशन. अच्छा कब दोगे, अच्छा कितना दोगे, अच्छा कितनी देर में, अच्छा पहले ये करके दिखा, फिर वो हो गया. So what you've done at a very starting point, very, very early, and this can happen very early at a toddler stage. Yeah, कि मेरे को गोद में उठाओ, मैं रो रहा हूँ, मेरे को नीचे छोड़ा. तो उस वक्त बच्चे ने थोड़ा चिल्लाया, आपने थोड़ी देर रोने दिया, या फिर आपने एकदम उठा लिया. तो उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे इतनी सी नेगोशिएशन करी, मैंने चिल्लाया, बोला, रोया, तो मम्मी ने उठा लिया. तो नेगोशिएशन ना वहाँ से स्टार्ट हो गई. तो मेरे दिमाग में हो गया कि अगर मुझे मम्मी से कुछ चाहिए, या मुझे कुछ पापा से चाहिए, या मुझे दादा से चाहिए, दादी से चाहिए, तो मुझे ना थोड़ा सा ये तरीके निकालने पड़ेंगे. एंड नाउ अब वो 1.5 साल का बच्चा रो के निकाल लेता है और धीरे 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 कुछ और बढ़ता जाता है. Okay. So now you want to add something in that? No, completely agree. Yesterday only I was sharing my example with Sushant, my niece. She's just she's 2.5 probably. तो घर में एक ही बच्चा, तो उसने ना सीख लिया है कि कैसे ना रो के, चिल्ला के, ज़मीन पे लेट के मेरी बात मान ली जाएगी. सो नाउ दैट इतनी स्ट्रॉन्ग विंटर्स हैं वहाँ पर, उसको ना बस पापा घर पे आ जाए तो पापा ही पापा चाहिए. तो उसने एक एसोसिएशन बना लिया कि जब पापा टोपी पहनते हैं और कोट पहनते हैं, पापा बाहर जा रहे होते हैं. अब घर में अगर उसको उसके फादर को टोपी पहननी है, कोट पहनना है, वो पहन नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वो टोपी पहनता है दिस गर्ल स्टार्ट्स क्राइंग, नहीं 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 नहीं. एंड व्हाट हैपेंड, अब वो बच्चे को रोता हुआ देख नहीं सकते, तो वो बच्चे को उठा लेते हैं. एंड दे चोज नॉट टू कवर देमसेल्फ अप इन दिस विंटर सीजन बिकॉज द चाइल्ड इज क्राइंग. वो इतनी सर्दी में जाके रूम के फैंस चला कर आ जाएगी. क्या करे, छोटे बच्चों पे चिल्ला नहीं सकते हैं. एंड पेरेंट्स एक्चुअली कम टू अस विद दिस थिंग कि यार इसके साथ हर चीज़ में बार्गेन करना पड़ता है. स्कूल चले जाओ, बार्गेन करना पड़ता है. खाना खा लो, होमवर्क कर लो, क्लास वर्क कर लो, रिवॉर्ड्स देने की हम कोशिश करते हैं, इंसेंटिवाइजेशन करने की कोशिश करते हैं. पर वो चीज़ें ना, जैसे सुशांत ने बोला, द ग्राफ इज़ गोइंग अप बिकॉज हमने बचपन में ही सिखा दिया कि ना यहाँ बार्गेनिंग का प्रोसेस चलता है. तुम ये करो फिर ये हो जाएगा, और तुम्हें अगर अपनी बात मनवानी है तो थोड़े टैंट्रम ड्रामा करना पड़ेगा. सो आप लोग ये बोल रहे हैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी बच्चे की एज, वो कुछ पैटर्न्स पकड़ लेते हैं और वो उस पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं टू गेट द थिंग्स विच दे वांट. नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ऑफिस में भी ऐसी ही केस स्टडीज़ पे काम कर रहा हूँ, ऐसे ही पैटर्न्स पे काम कर रहा हूँ, और जब मैं घर आता हूँ तो मुझे फिर उतना ही दिमाग लगाना है टू वर्क और टू इवन प्ले विथ माई किड. तो इज देयर अ हैक
मैं इसको कहीं से मिटिगेट कर दूं? अगर इसमें ये सारे पैटर्न्स समझ में आ जाए और तरीके पता चल जाए तो कैसा रहेगा? ओके, फिर सिंपल हो जाएगा। हाँ सिंपल हो जाएगा, पर ये कैसे होगा? तो ये सारे पैटर्न्स और ये सारे तरीके सारे के सारे फॉलोड, वी हैव डन दैट वर्क एंड इट्स ऑल अवेलेबल। इट्स अ मैटर, इट्स अ नो ब्रेनर नाउ। बट ये तो हर बच्चे के साथ अलग हो सकता है ना? बट ह्यूमन बींग्स के पैटर्न सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है या इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक ही तरीके से चल रहा है ना, ऑक्सीजन ही जा रही है, लंग्स में ही जा रही है, तो पैटर्न तो सेम है ना। उसमें नुआंसेस होंगे डेफिनेटली, मेरी मेंटल इमोशनल्स आएंगी बीच में, बट बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है। दैट्स ऑल अवेलेबल। सो यू आर सेइंग कि आपने सारे हैक्स, मतलब आपने सारे पैटर्न्स पकड़ लिए हैं, एंड हाउ टू डील विद देम, यू हैव थिंग्स which can deal with them. एब्सोल्युटली। So, yes, there are hacks, and coming from my experience of studying child development and then as a child counselor, also, we have understood what are these patterns and what are the hacks to go about with these patterns, and all of that is documented with us. These are solvable and you guys can do it. Absolutely. Anybody can do it ठीक है, using what we have discovered. परफेक्ट. नाउ कमिंग अप टू माई फॉलो अप क्वेश्चंस, कि जैसे वो पैटर्न पकड़ के आपको एज अ ब्राइब चीज़ें लेते हैं, राइट, और आप उन्हें जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर हैप्पीनेस आप उन्हें वो प्रोवाइड भी करते हैं, ठीक है. छोटी उम्र में वो जो ब्राइब्स होती हैं और जो वो उनके हैक्स होते हैं चीज़ों को करवाने के लिए, दे आर नॉट मॉनिटरली वैल्यूएटेड, ठीक है. लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो पैसे में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है. तो क्या जब उनको आप उनकी पीस के लिए वो पैसा देना शुरू कर देते हैं या उनको वो कंफर्ट देना या रिसोर्सेज देना शुरू कर देते हैं, इससे उनका एम्बिशन पे या वो हंगर पे भी असर पड़ता है, कि उनका एम्बिशन कम हो जाता है कि मुझे सब आसानी से मिल रहा है, अब मुझे क्या मतलब है, मुझे बस थोड़ी सी ज़िद करनी पड़ेगी. डज दैट अफेक्ट द चाइल्ड? एब्सोल्युटली। हाउ टू सॉल्व दैट? तो आप देखो, एक छोटे बच्चे के ब्रेन में वो पैटर्न बन गया, मैं नेगोशिएट करूँगा मुझे मिल जाएगा, मैं नेगोशिएट करूँगा मैं वो मिल जाएगा. स्पेसिफिकली इन द एरिया विच यू आर टॉकिंग अबाउट, बिजनेस फैमिलीज, जहाँ पे अब रिसोर्सेज हैं, उसको भी दिख रहे हैं कि यार ये तो मिल जाएगा. अगर मम्मी पापा मना भी कर रहे हैं तो सामने तो पड़ा है, गाड़ी तो है, मुझे मिल जाएगी. तो पैटर्न चला गया ना. तो मेरे को उसको पाने के लिए मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मेरे को नेगोशिएट करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ टैंट्रम थ्रो करने की ज़रूरत है. तो ऑब्वियसली वो उसका जो एम्बिशन होगा उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसको सब कुछ वहाँ मिल रहा है. सो इट विल गेट डम डाउन. आपने जो बोला था ना कि व्हेन यू सेड दैट आई केम फ्रॉम अ फैमिली एंड माय फादर थॉट कि ये तो इंडिपेंडेंट हो गया. देखो, उन केसेस में क्या होता है कि नेचुरली देयर इज़ अ वांट टू डू. बच्चा दूसरी साइड भी जा सकता है, बट भूख तो नेचुरल है ना, क्योंकि वहाँ है कमी, इसलिए मुझे चाहिए. इन 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 द एरियाज ऑफ योर क्लाइंटेल उस भूख को पैदा करना पड़ेगा, एंड दैट कैन बी डन विदाउट इवन टेकिंग डाउन देयर प्रिविलेजेस. मतलब मुझे क्रिएट नहीं करनी है कमी सो दैट उसका एम्बिशन बन जाए, मैं एम्बिशन को भी क्रिएट कर सकता हूँ. बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो भूख है भी कि नहीं है? वो तो अभी मानवी ने बताया कि भूख क्या नहीं दिख जाएगी. एक बार दोबारा बोलोगे? हाउ टू आइडेंटिफाई कि भूख है भी कि नहीं, ये अभी हम कौन सी एज की बात कर रहे हैं? व्हाट डिड यू हैव इन माइंड? सो अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मेरा कोई बच्चा है जो 8 to 13 ईयर्स के ग्रुप में पढ़ता है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि उसकी कोई भूख है, ताकि मैं उसको नर्चर करके मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा पाऊँ उस चीज़ में? तो इसमें ना मैं पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि अभी बच्चा 8 का हुआ है, वो सीधा तो 8 का नहीं हुआ ना, पहले था. तो एक चीज़ तो ना हमें बेसिकली बिलीव करनी है दैट ऑल ह्यूमंस हैव दिस इनेट डिज़ायर टू ग्रो. वी आर बॉर्न विद दैट इनेट डिज़ायर टू ग्रो. पहले तो इसको ना टेम्पलेट की तरह छाप लो अपने दिमाग में कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा ग्रो नहीं करना चाहता. अब ये जो आप भूख बोल रहे हो, ड्राइव, फायर इन द बेली, स्पार्क, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये धीरे धीरे डल होती हैं. जैसे सुशांत ने बोला, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जब हम रिसोर्सेज देने लग जाते हैं, बार्गेन करने लग जाते हैं, इस तरीके से वो डल होनी शुरू हो जाती हैं.
8 to 13 एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पर वो इतनी भी डल नहीं हुई कि वो रीइग्नाइट नहीं हो सकती है, और इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप उसको गाइड नहीं कर सकते हो, एक डायरेक्शन नहीं दे सकते हो. इट हैज़न गॉन टू द रॉन्ग डायरेक्शन, इट हैज़न गॉटन डल डाउन कि वो हम स्पार्क नहीं कर सकते हैं. सो पहले बिलीव करो कि बच्चे में वो स्पार्क है, वो ड्राइव है. हमें बस उसे सपोर्ट करना है, राइट रिसोर्सेज वाइजली देने हैं, अबंडेंस में नहीं जाना है, प्रोटेक्ट नहीं करना है, एंड वी हैव टू टेक अ डायरेक्शन वेयर वी कैन हेल्प देम टू फाइंड आउट देयर ड्राइव, rather than feeding them with everything, protecting them from difficult situation कि इससे तो बच्चा अच्छा ग्रो कर जाएगा. पता कैसे चलेगा? That's his question. Yeah, so throw your children into the field. उनको जितनी चीज़ों का एक्सपोजर दे सकते हैं, whether it's sports, म्यूजिक, एक्टिविटीज, स्टडीज, बिजनेस, मेडिकल लाइन, जितनी भी चीज़ें हैं, लेट देम एक्सप्लोर द वर्ल्ड. उनको चीज़ें करने दो, रैदर देन थिंकिंग कि ये क्या ही करेगा, कितना परस्यू करेगा. ये ना ड्राइंग बहुत अच्छी कर रहा है, चलो मैं ना ड्राइंग टीचर लगाता हूँ एंड लेट हिम बी अ वर्ल्ड रिनॉन्ड आर्टिस्ट. हम उनकी एक चीज़ अच्छी देख कर ना उनको फोर्स करते हैं कि उसी में अपना नीश बना. लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम प्ले आउट, लेट देम आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद वेरियस थिंग्स. जब बच्चा बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लोर कर रहा होगा ना, पता चलेगा, आपके बच्चे को भी पता चलेगा और आपको भी, बिकॉज यू विल सी वेयर डू यू सी योर चाइल्ड लिविंग फुल्ली, वेयर योर चाइल्ड इज़ फीलिंग जॉयस. क्या चीज़ ना वो रात को 2 बजे भी कर सकता है और वो थकता नहीं है. ये कुछ इंडिकेशंस है जिससे पता चल जाएगा कि ये लग रहा है कि दिस इज हिज कॉलिंग. But to Yes. go back to your previous question कि ये पता कैसे चलेगा कि ड्राइव नहीं है, है या ड्राइव नहीं मिसिंग हो गई है. हाँ, है या नहीं है भैया? देखो, है इज इनेट. वो दब गई है, वो डैमेज हो गई है, कैन बी अ क्वेश्चन. है, दैट्स अ फैक्ट. जो मानवी ने बोला ना कि इसको तो छाप लो. दबी हुई कब है, कहाँ कहाँ दिख जाएगी कि क्या वो जो भी उसको काम करने हैं वो अपने लिए कर रहा है, वो खुद कर रहा है, या वो आपके लिए कर रहा है, या फादर के लिए कर रहा है, मदर के लिए कर रहा है, टीचर को दिखाने के लिए कर रहा है, या उसका वो काम दूसरे लोग कर रहे हैं. देखो, अगर जस्ट टू एक्सपैंड ऑन दिस, वो होमवर्क क्यों कर रहा है? वो स्कूल जाना चाह रहा है. वो जाना चाह रहा है या आप भेज रहे हो? अगर आप भेज रहे हो ना, तो वो ड्राइव डैमेज हो रही है और दिख रहा है हो चुकी है. आप उसको ट्यूशन में भेज रहे हो, आप उसको बोल रहे हो एग्जाम के लिए पढ़ ले, आप उसको बोल रहे हो जा स्पोर्ट्स गेम खेल ले. चाहे मैंने बोला था कि मुझे क्रिकेट सीखनी, मुझे क्रिकेट कोचिंग में डाल दो, लेकिन अगर तीसरे दिन मेरे को ज़बरदस्ती भेजना पड़ रहा है, क्या वो क्लियर इंडिकेशन है ना ड्राइव खत्म हो गई है? तो कुछ और बीच में आ गया जिसकी वजह से ड्राइव मिसिंग हो गई है. तो देयर इज अ सेकेंडरी रीजन कि कुछ बीच में आ गया. रीजंस तो पता करने पड़ेंगे, बट मैं आपको इंडिकेशंस दे रहा था कि ये जो काम आपको ज़बरदस्ती करवाने पड़ रहे हैं, खाना ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा है, स्कूल ज़बरदस्ती भेजना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें इंडिकेटर हैं ड्राइव नीचे जाने की. और ये ना बहुत जल्दी पता चल जाएंगी. ये आपको ना 2-3 साल की उम्र में पता चल जाएंगी. 8 साल में, जैसे मानवी ने बोला अभी, कि नीचे है, उतनी डैमेज नहीं है, यू कैन एक्चुअली गेट इट रिवर्स्ड, एंड दैट्स अ वार्निंग साइन. गेट इट रिवर्स्ड, अदरवाइज इट्स गोइंग डाउन हिल. 17-18 साल के बच्चे से नीचे लेके आना, और मोस्टली बिजनेस पीपल जो अब आते हैं मेरे पास, 25 साल का बच्चा हो गया है, कह रहा है यार वो ऑफिस आता है अपनी मर्जी से, बिजनेस उठा नहीं रहा, उसको तो केबिन चाहिए, उसको उस गाड़ी में आना है, उसको वो प्रिविलेजेस चाहिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे जो काम करना है वो नहीं कर रहा. वो अब मेरी घंटी बज रही है 25 पे. भाई साहब, वो बजनी चाहिए थी 5 पे. 5 पे नहीं बजी, 8 पे. और ये इंडिकेटर्स है ऐसे जो भी मैंने बोले. हमें लगता है कि यार ये सारे बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, राइट. बट वो एक्चुअली ड्राइव खत्म हो रही है. सो जैसा कि आपने बहुत सही से एक्सप्लेन किया, और यूजुअली ये प्रॉब्लम्स होती है हमारे क्लाइंट्स में भी, बट एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम ये भी होती है कि किसी एक चीज़ में उनकी ड्राइव बनती है एंड दैट थोड़े टाइम के बाद वो ड्राइव डाई डाउन हो जाती है, फिर कुछ वो नया पकड़ते हैं, फिर डाई डाउन हो जाती है. तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग केस प्रेजेंट करता है प्रेजेंट पेरेंट्स के सामने कि चाह क्या रहा है, क्या करना चाह रहा है, राइट? तो हाउ टू डील विद दिस? Exactly, this is very, very common. Most of the households share this issue, and their parents are actually spending a lot to fulfill their dreams, their desires, and it really pinches them कि हम इतना effort, इतना money लगा रहे हैं, बच्चे pursue नहीं कर रहे हैं. होता है. अगर हम थोड़ा सा उसमें समझेंगे ना, तो हमें आंसर्स वही मिलेंगे जो अभी सुशांत ने बोला. सबसे पहले
हमें धक्का देने की ज़रूरत है, लाइक आई वाज सेइंग कि एक्सपोजर दो, लेट देम एक्सप्लोर। हमें धक्का देने की ज़रूरत है कि जाओ ये करके आओ, लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर लग रहा है ना कि वो सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि मैं भेज रहा हूँ, तो दैट्स एन इंडिकेशन कि ड्राइव मर गई है। ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू सी कि नहीं, मुझे पुश नहीं करना पड़ रहा, वो खुद जा रहा है। लेकिन 2 वीक्स मैक्सिमम, 3 वीक्स, 1 मंथ, उसके बाद उनकी फिर नेक्स्ट विश हो जाती है, अभी मुझे फोटोग्राफी करनी है, अभी मुझे डांस करना है, अब मुझे म्यूजिक सीखना है, अब मुझे ड्राइंग करनी है। ये बहुत कॉमन है। In these scenarios, there is a system that parents can follow. We talk about this almost every day, like I say, क्योंकि हर हाउस होल्ड में आता है। रोज़ हमारे पास ये सिचुएशंस आती हैं, पेरेंट्स प्रेजेंट करते हैं, एंड देर इज़ अ प्रोसेस विच पेरेंट्स कैन फॉलो टू अंडरस्टैंड कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्यों वो इतना स्विच ओवर कर रहे हैं, क्यों फ्लिप कर रहे हैं अपनी हॉबीज़, हाउ कैन दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट कैन दे डू अबाउट इट। वी हेल्प पेरेंट्स विद दैट। राइट, अभी आपने ना एक वर्ड यूज़ करा, एक्सपोजर। राइट, एक्सपोजर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ट्रेंडी और बहुत सारी फैमिलीज़ में बहुत यूज़ होता है कि लेट देम ट्राई न्यू थिंग्स, लेट देम ट्राई डिफरेंट थिंग्स। बट there are a lot of cases जहाँ पे exposure have gone wrong, giving exposure have gone wrong, and they have been exposed to things which they should not be exposed to, right? I hope you guys are For getting it. example? For examples, you can say drugs, alcohol, and things which are very harmful for the body, for the mind, for the future of their being. तो अगर exposure करवाना भी है, लेकिन एक्सपोजर को कंट्रोल में भी रखना है कि गलत एक्सपोजर ना चला जाए, तो ये कैसे होगा? मतलब हाउ टू डील विद दिस? तो शिवम, यहाँ पे ना सबसे पहले ये है कि जब बच्चा बहुत, आई लाइक आई सेड कि ना बहुत कॉमन है, हम रोज़ सुन रहे होते हैं, बट सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जब पेरेंट ये देख रहा होता है ना कि मेरा बच्चा बहुत जल्दी जल्दी स्विच कर रहा है, हम पैनिक कर जाते हैं, एंक्शियस हो जाते हैं, वरिड हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। वी फील ऑल दीज फीलिंग्स एंड विच एक्चुअली हाईजैक्स आर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड आर नर्वस सिस्टम। सोचने की क्षमता हाईजैक हो जाती है। सबसे पहले वी हैव टू टेक अ पॉज। अगर हम ये देख रहे हैं ना, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट पैटर्न्स, टेक अ पॉज। सबसे पहले हम डर जाते हैं, टेक अ पॉज, यू नीड टू सिट बैक एंड रिलैक्स, एंड देन डू द सेम विद योर चाइल्ड। अप्रोच द चाइल्ड एंड आस्क द चाइल्ड कि यार व्हाट्स हैपनिंग। जो भी लास्ट क्लास उसकी होगी, टेनिस होगी या आर्ट क्लास होगी, अच्छा हाउ इज दिस क्लास गोइंग फॉर यू, क्या चल रहा है वहाँ पे, टीचर कैसी है, क्या सबसे अच्छा लगता है वहाँ पर, क्या अच्छा नहीं लगता, अच्छा स्कूल से आके चेंज करके खाना खा के भागना पड़ता है, हाउ इज़ इट फॉर यू। बट ये कॉन्वर्जेशन ना प्लीज़ तब मत करना जब आपने देखा है कि अब वो छोड़ रहा है और आप परेशान हो गए हो। दिस इज़ अ कॉन्वर्जेशन दैट नीड्स टू हैव, दैट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन नीड टू हैव ऑन अ डेली बेसिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चे का ना वर्ल्ड दिख कैसा रहा है, क्योंकि सेम चीज़ उसको स्कूल में भी फेस हो रहा होगा। सो ये सब जो चीज़ हम देख रहे हैं ना कि बच्चा स्विच कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी, अगेन इट्स अ सिम्टम, लाइक वी टॉक्ड अबाउट नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, इट्स अ सिम्टम। वी नीड टू गो बैक एंड आइडेंटिफाई कि उसके पीछे चल क्या रहा है, एंड दैट नीड्स टू बी योर रेगुलर पार्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन ऑन अ डेली रूटीन। अंडरस्टैंड फ्रॉम द चाइल्ड, पूछो उससे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, किसकी बात अच्छी लगती है, कौन बेस्ट फ्रेंड है, किसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। व्हेन यू टॉक टू योर चाइल्ड इन दिस वे, यू विल रियली रियली अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड, और वहाँ से ना हमें आंसर मिल जाएगा कि बच्चा स्विच क्यों कर रहा है। क्योंकि हमें ना पता नहीं है शिवम कि क्या उसका इंटरेस्ट तो स्पोर्ट में या उस हॉबी में ख़त्म हो गया है, या वो कोच के इंटरेक्शन से वो डर गया है, कोई उसको बुली कर रहा है। ये सेल्फ डाउट आ रहा है कि मुझसे तो ये हो नहीं रहा, बाकी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाइल्ड काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ तो मैं सुनती हूँ क्या क्या रीजंस होते हैं बच्चों के चीज़ों को स्विच करने के। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट वो मेरे जानने से काम नहीं चलेगा, पेरेंट्स को वो बात करके जानना ज़रूरी है। और पेरेंट्स भी ये काम तभी कर पाएंगे जब वो रिलैक्स हो पाएंगे, रैदर देन बीइंग एंग्शियस एंड वरीड एंड नर्वस कि ओह ये क्या हो गया, ये भी गलत कर दिया। और जब वो बीमारी पता चल गई ना कि क्यों हो रही है, तो उसका आंसर भी निकल आएगा। ओके, क्या ऐसा रिपीटेटिव इंसिडेंट हो कि कोई बुलिंग कर रहा हो और वो बता ना रहा हो, और आपको जैसे समझ में आने लग जाए कि यार ये बार बार उस चीज़ों को छोड़ रहा है, ही और शी डजंट वांट टू गो देयर, तो ये लॉन्ग टर्म में क्या ये कैरेक्टर बिल्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि वो हमेशा से फिर सबमिसिव ही रहेंगे, ऐसा कुछ होता है? क्या ये कैरेक्टर बिल्डिंग में इम्पैक्ट करता है? द आंसर इज यस। अब वो हमेशा सबमिसिव रहेंगे, उसका That's आंसर my yes। assumption, मतलब उसका it- आंसर it कुछ भी हो does सकता है, affect. हो सकता है मैं एग्रेसिव बन जाऊं। Okay. कुछ लोग बुली होके हाँ, सहम जाते हैं, हम्म, कुछ लोग बुली होके अग्रेसिव बन जाते हैं।
एंड कुछ लोग एक लाइफ टाइम में दोनों भी होते हैं. सो जैसे चाइल्डहुड में स्कूल ईयर्स में बुली हो रहे हैं एंड दे बिकेम सबमिसिव एंड दे वर ओनली गेटिंग फ्रोजन इन दोज मोमेंट्स. Gradually they also turn around, they learn from their life experiences with the environment. पेरेंटिंग की हेल्प से बच्चे सीखते हैं कि कैसे मुझे असर्टिव होना है. और कई बार बच्चे जो बुली होते हैं वो आगे चलकर खुद बुली करने लग जाते हैं. तो इसका कोई ऐसा पैटर्न और लिंक नहीं है. बट कैरेक्टर पे जरूर असर Impact पड़ता है, होता है. बिल्कुल है, वो क्लियर है. और वो पता लगाना है राइट कि राइट क्या हुआ है और क्यों हुआ है. अगर आपको वो पता चल गया, देन द की टू टेक द राइट डायरेक्शन इज इन योर हैंड्स. एंड अगर आप, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट इट कि अगर मैं मेरे बच्चे से ये हमेशा पता लगाने की कोशिश में रहता हूँ कि क्या बॉदर कर रहा है, तो विल इट इम्प्रूव द रिलेशनशिप ऑफ माइंड विथ माई चाइल्ड, या फिर ऐसा हो जाएगा कि यार ये बहुत इंटरवीन कर रहे हैं मेरी लाइफ में? क्या मतलब व्हाट आर योर अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग? इफ आई रिवर्स दिस क्वेश्चन I'm just and trying to I'm be just helpful. reverse this question here, your parents actually speak to you about कि अरे शिवम यार क्या चल रहा है, और हम सिर्फ ना, so जो मैंने बोला ना, lot of people start seeing it like that. हम सिर्फ वो पता नहीं लगा रहे हैं कि गड़बड़ क्या चल रहा है. मानवी ने क्या कहा, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, करेक्ट. क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या अगेन इट फ्रेंड्स हैं, डिपेंड्स अपॉन कि दोनों. हम इंटेरोगेशन से बच्चे से बात कर रहे हैं या हम जेन्युइनली क्यूरियस है उसकी लाइफ. जानना चाह रहे हैं कि Right. क्या चल क्या रहा है मेरे बच्चे की Right. लाइफ में. और वो हर पेरेंट होता है शिवम. एवरी पेरेंट इज रियली क्यूरियस टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द चाइल्ड्स वर्ल्ड. बट ना हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करें. तो हमारे पास क्या तरीके हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा लो, बच्चे के फ़ोन को ट्रैक कर लो, बच्चे की चैट हिस्ट्री पढ़ लो, उनकी चैट्स पढ़ लो, उनकी एप्स देख लो. हमें वो तरीका पता होता है. हमें ये तरीका ही नहीं पता होता कि डायरेक्ट बात लेट करके मी हो आस्क सकता है. क्या चल रहा है तेरे साथ. करेक्ट. एंड शिव, मैं एक सवाल पूछूं, हाँ, if you have a person in your life who knows you, understands you, trusts you, वो तुम्हें समझ पा रहा है, क्या करोगे उस इंसान का? द वेरी प्रेशियस पर्सन. आंसर मिल गया ना. करेक्ट. वो सब कुछ ही है यार. बट इसमें ऐसा तो कभी मतलब व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि ऐसा लगता है कि यार डोंट इंटरवीन इनटू माय प्राइवेट स्पेस. तो अभी ये आपने पता जवाब क्या दिया? तो ये पता करना होता है कि प्राइवेट स्पेस बना क्यों. इज दिस अ वे टू फिगर इट आउट कि वो प्राइवेट स्पेस कैसे बन गया अगर मैं कॉन्वर्जेशन भी नहीं कर पा रहा हूँ आपसे तो. हाँ, और अगर हम 18 और 20 साल में करेंगे तो प्राइवेट स्पेस बन जाएगा. लाइक वी सेड 8 to 13 ईयर्स इज़ अ वेरी राइट टाइम. क्योंकि 8 साल तक ना बच्चों का एक्सप्रेशन ऐसे क्लोज भी नहीं हुआ है, और हो सकता है कि थोड़ा क्लोज हो गया लेकिन खुलने के लिए पूरा तैयार है. राइट. बच्चे वेट कर रहे हैं अपने मम्मी पापा से बात करने का, क्योंकि हमें लगता है चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फ्रेंड्स, बट वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ओपन अप नहीं हो पाते हैं, अपना दिल नहीं खोल पाते हैं. वो वेट कर रहे हैं कि कोई तो हो जिससे बात करें. अब जब वो स्पेस घर पे नहीं मिलता है और फ्रेंड्स के साथ नहीं हो पाता, दैट्स वेयर व्हेन दे एंटर टीनेज ईयर्स दे गेट इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स, दे गेट इनटू बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, एंड देन दे गेट इनटू Alcohol, एक्चुअली vaping. बैड कंपनी because they're trying to get that warmth companionship outside. ओके. एंड ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है कि एज अ पेरेंट हाउ आई कैन इंश्योर दैट माई चाइल्ड should not get into bad company or should not be exposed to any bad kind of substance or behavior or things which are going around like alcohol, drugs, or some online things. How I can ensure that? कौन सी आखिरी पार्टी गए जिसमें ये सब नहीं हो रहा था? Most of the parties. सब में हो रहा था ना. तो मैं ये कैसे ध्यान रख सकता हूँ कि वो उसको ना एक्सपोजर मिले? वो तो पॉसिबल ही नहीं है. Correct. कोई भी शादी, कोई भी पार्टी इन चीज़ों के बिना होती नहीं है. चाहे मूवी देख लो, उसमें भी यही होगा. तो उसमें तो दिखा हुआ है कि यार वेप करो, सुट्टा मारो, हुक्का मारो, दारू लो, तो ऐसी ही पार्टी होती है. तो एक्सपोजर तो नहीं रुक सकता, पॉसिबल ही नहीं है. तो फिर किस चीज़ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं? हमारे रिलेशनशिप को. एक रिलेशनशिप को और उस बच्चे को. अगर मुझे पता है कि ये मेरे लिए ख़राब है और मेरे में स्ट्रेंथ है इसको विथस्टैंड करने की, तब पेरेंट का डर ख़त्म हो जाएगा कि ये कहीं भी चला जाए. सो कैन यू रिवर्स द ऑर्डर? But how I can develop that strength? एकदम से तो नहीं आ जाती वो कि मैंने आज से बोला कि आज मैं करूँगा और आज से होना शुरू हो गया.
वो डर तो कहीं ना कहीं रहता ही है, वो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं रहती है. हाउ टू डू दैट, हाउ टू डील विद दैट? शिवम, सबसे बड़ी इशू ये है कि हम इन बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम इससे डरे हुए हैं और बात नहीं कर रहे हैं. हम बात क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर ली, होमवर्क कर लिया, स्कूल चला गया, ब्रश कर लिया, खाना खा लिया, ये कर लिया. अरे ये बच्चे तो अपने आप कर लेंगे. ये वाली बातें करो ना जो मुद्दे की हैं. मैं तो बहुत सिंपल सी चीज़ हर पेरेंट को बोलता हूँ यार. हर पेरेंट को डर लगता है कि मेरा बच्चा ना संगत से बिगड़ जाएगा. इसको रिवर्स करते हैं ना, मेरा बच्चा उस संगत को अपने वजह से ठीक कर लेगा. व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वुड यू वांट? ये डर वाला या ये स्ट्रेंथ वाला? कैसे आती है स्ट्रेंथ? जैसा भी मानवी ने बोला ना, सबसे पहले तो समझो, बात करो. एनीबडी गोइंग टूवर्ड्स एनीथिंग विच इज अडिक्टिव, इट कैन बी food, it can be sweets, it can be chocolates, it can be gaming, it can be alcohol, it can be vaping, it can be shopping. मैं ये चीज़ करके कुछ अपनी इमोशनल नीड्स पूरी कर रहा हूँ. नोटिस कर लेना, कोई भी एडिक्ट, चाहे वो किसी चीज़ का भी एडिक्ट हो, उसके पीछे इमोशनल नीड है, उसके पीछे ट्रॉमा है, उसके पीछे पेन है, जो कोई नहीं समझ पाया और मुझे सपोर्ट नहीं मिला. वो क्लोज कर दोगे ना, यू कैन एक्चुअली इरेडिकेट एडिक्शन फ्रॉम दिस वर्ल्ड. Right. Now, next big question. Again, we are coming to the business family part. That a lot of children are not willing to join the family business. Right. क्या वजह होती है इसके पीछे के? Why do they feel detached from their own legacy? बहुत सारे रीजंस होते हैं. आई कैन स्टार्ट विद अ कपल ऑफ देम एंड देन यू कैन ऐड लाइक फ्यू थिंग्स दैट आई हैव seen. Also add the experience from people. Yeah, so like Sushant was saying that parents are doing everything कि बच्चे जो ड्राइव Yes. कौन सी एज में पिक करनी है. And one more thing, I just want to understand the solution part of that also. कि how we can solve this. कि बच्चे बिजनेस ज्वाइन कर ले. हाँ, मतलब कि उनका वो इंटरेस्ट तो आ ही जाए. तो ना बच्चे बिजनेस ज्वाइन कर ले का प्रॉब्लम हम 20-25 में नहीं उठा सकते. सो 25 में हमने देखा कि अब बच्चे नहीं कर रहे हैं और अब हम सोचें अब हमने इसको आइडेंटिफाई करा, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. नॉट दैट कि वो तब सॉल्वेबल नहीं है, बट इट वुड बी ग्रेट कि उसका काम ना हम फाउंडेशन ईयर से करें. पर पहले वहाँ चलते हैं कि बच्चे क्यों नहीं करना चाह रहे, क्या हो रहा है. सो व्हाट वी हैव सीन इज कि पेरेंट्स बच्चों की फेवरेट कार खरीद रहे हैं, पहले बच्चों के आने से पहले उनका केबिन बन रहा है, सारे रिसोर्सेज उनके लिए रेडी हैं. अब जब सारे रिसोर्सेज रेडी हैं तो वो हार्डवर्क क्यों करेगा? अगर मुझे कोई बार बार खाना बना के दे देगा, इफ़ द फूड इज सर्व टू मी ऑन माई टेबल, वाई वुड आई मेक एन एफर्ट टू गो एंड लर्न हाउ टू कुक? वेयरएज कुकिंग इज़ अ लाइफ स्किल, मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है. उसी तरीके से अगर सारी रिसोर्सेज मुझे हैं, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव मनी एंड आई हैव मनी टू बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई वांट, वाई वुड आई नीड टू गो बैक एंड लर्न कि मुझे पैसे कैसे कमाते हैं, क्यों कमाने हैं? उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है. तो इसको अगर ब्रेक करना है पेरेंट्स को, that they really push their children to join the family legacy, join the family business. उन्होंने इतने एफर्ट्स से जो करा है उसके लिए करें, बच्चों उसको ज्वाइन करें, ग्रो करें, सपोर्ट करें, इंजॉय करें. उसका काम ना हमें फाउंडेशन ईयर्स में करना है. नॉट दैट कि अभी से सिखाना शुरू कर दो कि बिजनेस क्या होता है. नहीं, बच्चों से बात करो, अंडरस्टैंड कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जो घर में रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो जो पापा को देख रहे हैं उसको कैसे परसीव कर रहे हैं. एंड एक जो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग थिंग्स इन अबंडेंस. क्योंकि मुझे नहीं मिला ना तो मैं अपने बच्चे को सब कुछ दे दूंगा, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए. जब हमने वो रूट ले लिया, वी हैव एक्चुअली डैमेज द इंटायर ड्राइव दैट द चाइल्ड हैज़ ग्रोन एंड बॉर्न विद. द चाइल्ड वुड नॉट लाइक टू मेक एन एफर्ट व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू द चाइल्ड. Okay. And one more critical element of this is शिवम कि ना, आप इतने क्यों ड्रिवन हो अपने बिजनेस के लिए? क्योंकि आप उसको ओन करते हो. यू आर द ओनर. व्हाट हैपेंस नॉर्मली इज व्हेन यू आर ब्रिंगिंग योर चाइल्ड इन, आप ना ओनरशिप से नहीं ला रहे. ही डजंट ओन इट, इट्स यू ओन इट एंड यू आर ट्राइंग टू गेट हिम इन. वी हैव टू बिल्ड द ओनरशिप देयर. हमारी वैल्यू सिस्टम, हमारा थिंकिंग एबिलिटी, काम करने का तरीका
अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जब आपने कोई बिजनेस सेटअप किया था उस टाइम के रिसोर्सेज और आजकल के रिसोर्सेज, आज की टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं थी ना. तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस डिफरेंस दैट दिस चाइल्ड इज कमिंग विद अ लॉट मोर ऑफ रिसोर्सेज एंड लॉट मोर ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो. वो जो ट्रस्ट है ना कि यार तो पहले ना इसको करना फिर मैं तेरे को हैंड ओवर करूंगा. नहीं भाई, ये हैंड ओवर पहले होगा फिर ओनरशिप आएगी. एज अ पेरेंट इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, आप ना किसी दूसरे के बच्चे को बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो, काउंसलिंग भी कर सकते हो, समझा भी सकते हो. जब अपने बच्चे पे आता है तब डिफिकल्टी शुरू होती है. राइट. और जो ड्राइव मेरे को अपने बच्चे को करने के लिए है, मतलब अगर मेरा बच्चा बीमार होगा तो मैं रात को 2 बजे भी नहीं सोचूंगा क्या हो रहा है. पड़ोसी के बच्चे के लिए शायद 2 बजे नहीं उठूंगा. तो ओनरशिप बिल्ड करनी है, और वो ओनरशिप में मेरे को अपना वैल्यू सिस्टम, अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी एस्पिरेशंस, आपकी और अपनी बच्चों की समझ के उनको लीवरेज करना है. हम कहते हैं डिफरेंट है, अरे डिफरेंट होंगी एंड इट्स ग्रेट. अगर वो डिफरेंट नहीं होंगी तो मिलके 2 नहीं होंगी ना. सही वो बात है. दोनों मिलेंगी 11 बन जाएंगी. तो हमें लीवरेज करना है उसको, लेकिन उससे पहले उसको एक्नॉलेज करके गलत नहीं ठहराना. सो देयर आर फार मोर एस्पेक्ट्स, एंड एज मानवी सेड, दिस रियलाइजेशन कम्स एट 25, 26, 27, जब लगता है हाँ पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, वापस आके धंधे में आ जा, जॉब में, बिजनेस में शुरू हो जा साथ में. दिस नीड्स टू बी बिल्ट अर्ली. कैन इट बी चेंज एट 25? The answer is yes. It will take far more effort and far more energy. And we have done that. Yeah, that's possible. Did you get the solution to the हाँ question? हाँ. एंड व्हाट इफ कि अगर आप वो आ गए हैं बिजनेस में वापस, है ना, एंड अब जो लेगेसी है वो उनके लिए एज अ असेट वो बर्डन बन गई है कि अब इतनी बड़ी लेगेसी मैं कैरी कैसे करूँगा, मुझे इसको आगे बढ़ाना होगा, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी इफ़ आई जस्ट फेल टू एक्सपैंड द बिजनेस और कीप द बिजनेस रनिंग. तो ये बहुत सारी इनसिक्योरिटीज बच्चों में भी होती है, बिल्कुल होती है. राइट. तो हाउ एज अ पेरेंट आई शुड एड्रेस इट, हाउ आई शुड डू इट? पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे ने आके पेरेंट के साथ शेयर करा है. या तो ये पेरेंट एज्यूम कर रहे हैं कि बच्चा ऐसे सोच रहा है, या ये बच्चे के पास ही है और पेरेंट तक तो गई वो नहीं है. प्रोग्रामिंग हमारी 8 to 13 से ही जो बात करने की जो प्रोग्रामिंग है वो हमें यहाँ पे बहुत बेनिफिट देगी बिल्कुल. कि अगर आप बात कर रहे हो तो वो आपसे आके बात कर पाएंगे कि मुझे एक नहीं समझ में आ रहा. कम्युनिकेशन चैनल बना हुआ है ना, कि मेरे अंदर जो भी है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ. एंड ट्रस्ट मी, ये जो आपने एक वर्ड यूज़ करा इनसिक्योरिटी, जब एज अ चाइल्ड मैं अपनी इनसिक्योरिटी अपने पेरेंट के साथ शेयर कर देती हूँ ना, वो वहीं डिसॉल्व हो जाती है. राइट. कि मम्मा मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ना ऐसा हो जाएगा, मैं शायद कर नहीं पाऊंगी. आप एक बार बोलो तो सही अपने पेरेंट को, सेफेस्ट स्पेस को, वो वहीं डिसॉल्व हो जाएगी. एंड पेरेंट को पता है उसे क्या करना है. शायद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या शायद बस आई नो तो कर लेगा, ये तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. नहीं भी होगा तो क्या हुआ, हम साथ में है ना, इतना भी काफ़ी है. Right. And this is my second last question to you. As a parent who already has a business or who have already arrived in life, right? What are the things I should be focusing on to actually inherit to my children rather than just business or just money or just assets? What are the things you would suggest कि ये आप inherit करोगे तो you will reap benefit long term और वो आपकी relationship भी अच्छी होगी और everything will be good? I think just two things according to me. One, have a channel of communication जहाँ बच्चा खुल के अपनी मन की बात बोल पा रहा है और आप भी अपने अंदर की दिल की बात बोल पा रहे हो. इनसिक्योरिटी पेरेंट को भी है, बच्चे को भी है. एंगर पेरेंट को भी आता है, बच्चे को भी आता है. सो हैव दैट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, सेफ स्पेस वेयर बोथ द पीपल कैन कम टुगेदर एंड शेयर. एंड सेकेंड, मेकिंग चिल्ड्रन रेडी फॉर द लाइफ. Right. यू कैन बिजनेस एंगल से मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा. सो वो नॉनी सेट की यार, सबसे पहले तो ना ये रिलेशनशिप ऐसे जिसके अंदर कम्युनिकेशन, ट्रस्ट 100% पे है. कि यार अगर मैं गिरा तो मेरे फादर है, और अगर मेरे फादर गिरे तो मैं हूँ, और हम अगर गिर रहे होंगे ना तो बता के बात कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे दैट वी आर इनसेपरेबल, वी आर ईच अदर्स, वी हैव ईच अदर्स बैक. एक तो वो चीज़ हो गई, वो स्टार्ट में काम करो. द सेकेंड थिंग इज टू रियलाइज दैट we are two different individuals. As I said before, every child is born with aspirations. They want to do well in their life. You have reached here in your life.
your child has the capability and the resources available to jump from here and take it up there. Correct. But remember one thing, what got you here, doing whatever, will never get you there. इसके लिए गेम चेंज करनी पड़ेगी, और उस गेम चेंजर का ओनरशिप वो बच्चे के पास है, उसके तरीके, उसके काम उसके पास है, आप उसका लॉन्च पैड हो. अगर ये डिफरेंस मैंने अपने आप को देख लिया कि नहीं यार, आई ब्रॉट इट हियर, आई हैव अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज जहाँ से मैं यहाँ तक बिजनेस को ले आऊँ. अब ना मेरा बच्चा यहाँ से उठा के यहाँ ले आएगा, और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी सारी ओनरशिप ना इसकी है. और हम दोनों एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे की पावर समझ के, एक दूसरे की स्ट्रेंथ समझ के, एक दूसरे की वीकनेस समझ के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Right. ये अगर दे दिया ना, आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्टॉपेज. And this is the last one I want to ask. कि आप usually 8 to 13 year olds के साथ काम करते हैं, उनके parents के साथ काम करते हैं. But what if someone realized कि यार मुझे तो आप लोगों से मिलना है अभी, लेकिन मेरा बच्चा 25 साल का हो गया है. तो can you guys help them find the solution for the problem of a 25-year-old kid of theirs? And is it possible? Absolutely, they can meet us. Yes, it is possible. So parents of 40-year-olds have come and taken support and made it happen. And parents of a 2.5, 3-year-old people have come and done that. It's easier when they're young. It's tougher when that is done. But Shivam, agar मैं अपना example, so my personal transformation, if I tell you, happened when I was about 40. If you meet somebody, you meet my teachers, my college people, the jobs I had done before, उनसे जाके आज मिलोगे और मेरे बारे में पूछोगे, तो शायद आपको वो सब कुछ पता चलेगा जो अभी तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा. Okay. It's a flip. So if I can do it at 40, Right. anybody can do it at And whatever age. so you only work with parents or you work with their children as well? Yeah, so we also take counseling sessions with children, teenagers, and preteen. But what I really suggest as a child counselor and psychotherapist, that children do not need counselors. Parents are the best person whom they can talk to. Yes, in certain situations where probably there is a condition, there is a situation of trauma, और पेरेंट्स आर themselves नॉट equipped, उनका खुद का भी मेंटल स्पेस उस प्लेस पे नहीं है. जब तक वो रेडी होंगे तब तक गाड़ी बहुत आगे छूट जाएगी. दैट्स वेयर वी बिलीव इन गिविंग एन इंटरवेंशन. So we also take sessions with children. Right. Thank you, Sushant sir. Thank you, Manvi ma'am, for joining us for a very interesting podcast. It was a very interesting subject, and I had very good conversation with you, and I would be learning from this conversation for my future references. And thank you for joining us. Thank you. Thank you. It was nice talking to you.